Good morning, class. Today we are going to do the poem The Ant and the Cricket from your book Honeydew. Actually, this is the first poem of your book The Ant and the Cricket. It is adapted from Aesop's fable. Aesop was a famous poet of ancient times, and fable, it is a collection of Aesop's fables. Fable means a story, often with animals as characters, that conveys a moral. फेबल क्या है? फेबल एक स्टोरी है जो एनिमल्स को एज अ कैरेक्टर यूज़ करती है एंड इट कन्वेज अ मॉरल ऑल्सो. उस पोएम में कोई मॉरल होता है. ओके, सो दैट इज़ नोन एज फेबल एंड Aesop's fable is a collection. So this poem, The Ant and the Cricket, is one of that fable. Okay, so let's start our poem. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. So in this poem, there are two characters. As I said that in fables, animals are playing the character. Animals fable में character की तरह use किए जाता है. So here ant is the first character and cricket is the second character. Actually both are the insects, but here in this poem they play a character. Okay, which convey some messages. ये जो ant and cricket है वो कुछ messages convey कर रहे हैं through this poem. So let's start. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So as I said that in this poem, in this fable, there are two characters, first ant and second cricket. So here in this first stanza, the poet is describing the cricket, that what he did in the summer and what was his situation, what was his complaint, what was his grumble. Okay, so a silly young cricket. Silly means foolish. So once there was a foolish young cricket who accustomed का मतलब होता है used to. So एक बार एक young silly foolish cricket था जो किस चीज़ का used to था, किस उसकी habit क्या थी, to sing. And he passed the sunny months of summer. The glad, gay means होता है happy. ओके, सो जो प्लेजेंट समर सीजन था, स्प्रिंग सीजन था, ही स्पेंड ऑल द सीजन ओनली इन सिंगिंग. वो अपनी उस हैबिट में ही अपना वो पूरा टाइम स्पेंड कर देता है. बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम. सो इन द सीजन ऑफ समर एंड स्प्रिंग ही स्पेंड हिज टाइम इन सिंगिंग. बट व्हेन द विंटर कम, लेकिन जब विंटर सीजन आता है, then he started to grumble means और complain means grumble, दोनों का मतलब होता है शिकायत करना. ठीक है, so he started to complain because when he found that his cupboard was empty, जब उसे ये पता चलता है कि उसका जो cupboard है means उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, there was nothing to eat for him, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, because his cupboard at his home was empty. उसका जो कबर्ड है वो एम्प्टी है. सो जब विंटर सीजन आता है, सो ही स्टार्टेड टू कंप्लेन, क्योंकि उसने जिस टाइम पे वर्क करना था, जिस टाइम पे उसको अपने लिए फूड कलेक्ट करना था, उस टाइम को तो उसने सिंग करते हुए और एंजॉय करते हुए स्पेंड कर दिया. अब जब विंटर आया तब वो कंप्लेन कर रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है टू ईट. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could be seen, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? So, now the cricket is saying that
ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड इन विंटर। ऑब्वियसली उसे विंटर में तो कुछ मिलना है नहीं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो समर और स्प्रिंग में, जब वेदर प्लेजेंट होता है, एट दैट टाइम दे कलेक्टेड द फूड, वो उस टाइम पे फूड कलेक्ट करते हैं एंड विंटर में उसको यूज़ करते हैं। बट हियर क्रिकेट ने क्या किया, ही स्पेंड हिज टाइम ओनली इन एंजॉइंग, राइट। सो crumb means broken food, okay. So now the cricket is saying that not a crumb to be found on the snow covered ground. वो कहता है कि अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, I did not have anything to eat in this winter because the weather is winter, everything is or the ground is covered with snow, there is ice everywhere, हर तरफ सिर्फ क्या है, आइस है, स्नो है, और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। Not a flower could he see, oh not a leaf on a tree, so neither a flower nor a leaf on a tree could be seen. ना तो किसी भी ट्री में ना फ्लावर्स दिख रहे हैं और ना ही लीव्स दिख रही हैं। Now at last what he saying, what he said, oh what will become of me. अब क्रिकेट को टेंशन हो रही है कि अब मेरे साथ क्या होगा, इस विंटर में मेरा क्या होगा, बिकॉज आई हैव नथिंग टू ईट। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. Now in this third stanza, starvation means होता है डेथ बाय हंगर, किसी की जब भूख से डेथ होती है दैट इज़ नोन एज स्टारवेशन। एंड फेमाइन का मतलब होता है शॉर्टेज, किसी चीज़ का की कमी हो जाना, किसी चीज़ की का अकाल पड़ जाना। ड्रिपिंग मीन्स फ्लोइंग डाउन, जब चीज़ें नीचे गिरती हैं, ड्रिप करना, टपकना, जैसे बारिश की बूंदें क्या करती हैं, ड्रिप करती हैं, नीचे टपकती हैं, राइट, सो फ्लोइंग डाउन। ट्रेम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, कांपना। एंड माइजरली मतलब होता है माइजर, कंजूस। सो नाउ क्रिकेट की सिचुएशन क्या है, एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। फाइनली अब क्योंकि क्रिकेट जो है उसकी स्टारवेशन से मीन्स अब उसकी भूख से डेथ होने वाली है, ही कुड बी स्टार्व्ड। स्टार्व का मतलब, स्टारवेशन का मतलब होता है ना डेथ बाई हंगर। सो जो उसकी जो फेमाइन हुआ, जो स्टारवेशन की सिचुएशन आई, उसने उसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड कैसे कर दिया, बिकॉज ही वॉज डाइंग ऑफ हंगर, सो ही टुक करेज। बोल्ड का मतलब होता है करेज, उसने करेज दिखाया। एंड ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, उस विंटर में वेट जो ओस की बूंदें हैं उससे वो बिल्कुल वेट हो चुका था। एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज द वेदर वॉज कोल्ड, वो ट्रेम्बल कर रहा था, ठंड से काँप रहा था। वो उस वेदर में अपने घर से बाहर निकलता है एंड सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, और कहाँ जाता है, टू मीट विथ माइजरली आंट। माइजरली आंट मीन्स आंट जो है वो कंजूस है, माइजर है, वो उस माइजर आंट के पास जाता है टू टेक सम हेल्प, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। क्यों जाता है वहाँ पे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था दैट इफ़ द आंट वुड हेल्प हिम कीप अलाइव, कि क्या आंट उसे ज़िंदा रखने में उसकी हेल्प कर सकती है। बिकॉज क्रिकेट एक्चुअली वेस्टेड हिज टाइम ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन, उसने अपना टाइम वेस्ट किया था। ऑन द सेकेंड हैंड एंट, इट इज़ ऑल्सो एन इंसेक्ट, उसने क्या किया, उसने हार्ड वर्क किया, अपने समर और स्प्रिंग सीजन में हार्ड वर्क करके अपने विंटर के लिए फूड कलेक्ट किया। ओके, सो उसने फूड कलेक्ट किया था, उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। सो क्रिकेट ने सोचा कि लेट्स गो एंड मीट विद आंट, मे बी शी विल हेल्प मी, मे बी वो मेरी हेल्प करेगी। सो ही वुड हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करेगा। सो he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. Okay, अब क्रिकेट क्या सोच के वहाँ पे जाता है कि शायद एंट उसको रहने के लिए शेल्टर दे दे इस रेनी सीजन में, क्योंकि शायद उसने अपना घर भी नहीं बनाया, राइट।
समर और स्प्रिंग सीजन में क्या करती है इंसेक्ट्स का काम होता है टू कलेक्ट द फूड एंड टू मेक अ शेल्टर, नेस्ट बनाना जिसमें वो रह सके, एक ऐसी प्लेस बनाना जिसमें वो विंटर सीजन में रह सके, क्योंकि समर और स्प्रिंग में तो वो कहीं भी रह सकते हैं। सो क्रिकेट ने ना ही अपना शेल्टर बनाया, शेल्टर के लिए कुछ किया, और ना ही फूड के लिए कुछ किया। सो विद दिस थॉट कि एंट उसको रहने के लिए घर देगा और उसे खाने के लिए फूड देगा, वो ये सोच के वो ही विश्ड ओनली टू बोरो एंड ही वुड रीपे टुमारो। वो किस पर्पस से वहाँ पे जाता है, क्या सोच के जाता है? विद द इंटेंशन टू टेक अ डेब्ट। वो उससे बोरो करने के लिए जा रहा है, फूड बोरो करने के लिए। एंड ही सेड दैट इफ़ द एंट वॉज नॉट काइंड ही वुड डाई। वो क्या बोल रहा है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा वो एंट, इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। तो क्रिकेट की डेथ कैसे हो जाएगी? ड्यू टू द स्टारवेशन, ड्यू टू द हंगर एंड ड्यू टू द सोरो। सो ही वॉज आस्किंग फॉर द फूड एंड द शेल्टर विथ एंट। वो एंट से खाने के लिए और शेल्टर के लिए रिक्वेस्ट करता है। ओके ओके Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. Okay. इतना सुनने के बाद जब क्रिकेट एंट से रिक्वेस्ट करता है फॉर द फूड एंड द शेल्टर, तो एंट क्या कहती है? वो कह रही है, द एंट सेड टू द क्रिकेट दैट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तुम्हारा फ्रेंड हूँ। हाउएवर बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। देन ही सेड दैट इट इज़ आवर प्रिंसिपल। एंट कह रहा है कि ये हमारा प्रिंसिपल है, हमारा रूल है दैट वी नीदर बोरो नॉर लेंड। ना तो हम कोई चीज़ बोरो करते हैं, किसी से लेते हैं, और ना ही लेंड का मतलब होता है टू गिव समवन अ लोन, किसी को लोन देना, किसी को कर्ज देना। ठीक है। सो ना तो एंट का रूल क्या होता है? एंट का रूल होता है, प्रिंसिपल होता है दैट दे नीदर बोरो नॉर लेंड। ना तो वो किसी से कुछ लेते हैं और ना ही किसी को कुछ देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय देन? फिर इतना कहने के बाद एंट क्रिकेट से पूछता है कि बट डियर क्रिकेट, क्या तुमने क्या किया जब वेदर था, वार्म डेज थे, तब तुमने क्या किया? डिड यू नॉट सेव एनी थिंग फॉर द बैड वेदर ड्यूरिंग द वार्म डेज? एंड क्रिकेट से पूछ रहा है कि जब अच्छा वेदर था, वार्म वेदर था, समर स्प्रिंग सीजन था, एट दैट टाइम क्या तुमने इस बैड वेदर, इस विंटर सीजन के लिए कुछ भी कलेक्ट नहीं किया? क्रिकेट सेड दैट ही डिडंट। क्रिकेट ने बोला कि नहीं, आई हैव स्पेंड माई होल टाइम इन डांसिंग। मैंने डांस करते हुए सारा टाइम स्पेंड किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू sang so you say, go then says the ant and dance the winter away. ओके, ये सुनने के बाद क्रिकेट क्या कहता है? क्रिकेट बता रहा है कि आई फील सो लाइट एट हार्ट दैट आई sang and sang all the through day and night. क्रिकेट बता रहे हैं कि मेरा हार्ट इतना लाइट था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन कि मैं दिन रात सिर्फ गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, क्योंकि गे हैप्पी, क्योंकि जितना भी नेचर था वो बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट दिख रहा था। सो मैं पूरे टाइम सिर्फ गाता रहा, डांस करता रहा, एन्जॉय करता रहा। सो ये सुनने के बाद आंट क्या रिप्लाई कर रहा है? यू sang सर यू से। उसने बोला बहुत शॉक्ड होके कि आप बोल रहे हो कि आपने सिर्फ गाना गाया ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन, देन गो एंड डांस द विंटर अवे। फिर वो क्या कहता है एंड एक्चुअली ही वॉज कमेंटिंग ऑन क्रिकेट। वो उस पर कॉमेंट कर रहा है दैट सर इफ़ यू पास द समर इन सिंगिंग देन पास द विंटर इन डांसिंग। वो क्या कह रहा है एंड कि ठीक है क्रिकेट, डियर क्रिकेट, अगर तुमने सिर्फ गाते हुए पूरा समर और स्प्रिंग सीजन निकाल दिया, स्पेंड कर दिया, देन गो एंड डांस एंड स्पेंड योर विंटर ऑल्सो, विंटर सीजन ऑल्सो। तो वो कहता है कि अगर
तुमने एंजॉय करते हुए अपना समर स्प्रिंग स्पेंड किया है, देन विंटर सीजन को भी डांस करते हुए स्पेंड कर दो। और इतना कह के वो उसको बाहर निकाल देता है। Thus ending the hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Okay, इतना कह के at the ending aunt क्या करती है, after saying this that go and dance and pass your winter, after saying this he closed the door. उसने क्या किया, उसने अपने घर के डोर को क्लोज कर दिया. So the poor cricket came out of the aunt's house. वो बेचारा क्रिकेट वो उसके दरवाजे से, उसके घर से बाहर आ जाता है. Folks call this a fable. Folks means people. folk का मतलब होता है लोग, people. So people calls this a fable. ये जो स्टोरी है in the poem, इस फेबल में जो स्टोरी है, लोगों का कहना है, फोक्स का कहना है, वो कहते हैं दैट इट्स अ फेबल, कि ये सिर्फ एक कहानी है. आई वॉरेंट इट ट्रू. वॉरेंट का मतलब होता है मेंटेन करना या एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को. सो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं, दैट आई एक्सेप्ट दैट इट इज़ ट्रू. लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है, एक फेबल है, एक कहानी है, बट मैं मानता हूँ कि ये एक सच है, ये एक फैक्ट है. Some crickets have 4 legs and some have 2. Here the poet believes it's true, and again he says that there are people in the world who behave like the cricket of the story. Here 2 legs मतलब क्या है? Here it is written as some crickets have 4 legs and some have 2. Actually जो insect होता है cricket, उसके 4 legs होते हैं, but here the poet is comparing the cricket with the human. Here with 2 legs cricket मतलब ह्यूमन से कंपेयर कर रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, 2 लेग्ड क्रिकेट हैं, जो क्रिकेट जैसा ही बिहेव करते हैं. जिस टाइम पे हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, उस टाइम पे हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, और फिर हमारा फ्यूचर इस क्रिकेट जैसा ही होता है. नोबडी हेल्प अस. अगर हमने अपना टाइम वेस्ट किया तो कोई हमारी हेल्प टाइम पे नहीं करता है. इसीलिए कहा जाता है दैट वी हैव टू डू द करेक्ट थिंग एट द करेक्ट टाइम. सो in this poem, the poet ends his story with a moral actually. He says that this is not a fable but truth, and he goes on to add that some humans are also like the cricket of the story. So this was the moral of the poem. So that's it. So after listening this poem, it is your duty that be like an ant. आपको एक ant जैसा होना चाहिए, hard working, not like a क्रिकेट. बिकॉज ये जो फैक्ट है 2 लेग्ड क्रिकेट, वो आप पे लागू होने लगेगा. सो बी लाइक एन आंट. ओके, थैंक यू एवरीवन.